Very good evening, all of you. Hope you all are doing well. Let's start with today's session. Quick recap of yesterday's session. Yesterday, we started with very important topic that is operators. So everything about operators, what operators, unary, binary, ternary, their precedence, their associativity, all that things we discussed. And then we started with one operator type that is arithmetic operator. Okay? Little bit have explained, few things were remaining. Okay, I'll just quickly go through it. So about arithmetic operator, major things we discussed yesterday. Arithmetic operators are operators used for performing mathematical operations or numeric operation. According to the rule says arithmetic is to be done on numbers. But in Python, as it's a loosely typed language, you can do operations or arithmetic operations on string as well, objects as well, array as well. So how it behaves. If you do it on Boolean, then how it will behave. All that today we will discuss. But yesterday we discussed assuming it is operating on numbers. Okay. So main operators, I've told you, like first was increment, decrement. You remember, huh? Plus plus I or I plus plus. So this is post increment, pre-increment. Same way we have decrement also. Only the rule of this is it is to be applied only on variable. Strictly, it is to be applied on variable. And the basic difference between pre and post, that too I have told you. Pre will give you the new value. Post will give you the old value. In both cases, the side effect is, what is the side effect? I incremented by 1. दोनों में क्या होगा आई एक से बढ़ने ही वाला है यहां भी साइड इफेक्ट ये है कि आई एक से बढ़ गया यहां भी आई एक से बढ़ गया सिर्फ रिटर्न वैल्यू अलग है राइट तो इस केस में जे में ओल्ड वैल्यू आता है आई बढ़ जाने वाला है यहां आई में न्यू वैल्यू आएगा बट स्टिल आई बढ़ने वाला इन बोथ केस द साइड इफेक्ट्स आर सेम ठीक है ओनली द रिटर्न वैल्यू इज डिफरेंट so that I told you then I told you about unary plus and unary minus called as assertion and negation. Okay? And the associativity of this is right to left. And they both are used in prefix form. They are always in prefix form. Right? Then the highest precedence operator, double star also I told you. Double star is raised to. I've told you about this yesterday. If you recall it, A double star B, it will give you A raised to B. This operator was not there in the old JavaScript. It is introduced in ES16. Yeah, sorry, ES6, which is 2015 standard. Raised to, and its associativity is right to left. Remember, 2 double star 3 double star 2 if I do. Remember, it's not going to do 2 raised to 3 first and then whatever answer raised to 2. Rather, it will do 3 raised to 2 first and whatever answer you get, 2 raised to that answer because the associativity is right to left. Okay? Then the standard binary arithmetic, that is multiplication, division, and modulus. About this also yesterday I told you. Multiplication operator, here division will always give you float answer, remember. It is not like Java, like some people know Java a little bit. So if I do 5 divided by 2, 5 is an integer, 2 is an integer. The answer is int in Java. 5 divided by 2, you will get only 2, the quotient part. Here it's not like that. 5 by 2 is 2.5 only. Okay. 5 by 2 is 2.5. And modulus will give the remainder. Okay. Only the thing is about sign. Okay. So if I do 5.5 modulo 2, right? It is going to give you answer 1.5.
Now, only the question is about the sign in case of modulo. That too, I'll tell you. Like if I'm writing 5 modulo 2, okay, or minus 5 modulo 2, or you are writing 5 modulo minus 2, or minus 2, or minus 5 modulo minus 2. Meaning all the combinations of signs I've taken, both positive, 5 is negative, your minus 2 is negative, you're both negative. What JavaScript does is it assumes both are positive and gives you the answer, and only gives the sign of the first operand to the result. Getting? In short, in all places you are going to get answer same. This doesn't apply in Python and all. Python language follows school rules, old school rules. There we have some formula, if you remember. Numerator minus floor division multiplied by denominator. All that rules in school we had, that it follows. Here it's not like that. Here it assumes all are positive and gets the answer. So in all four cases, the answer will be 1. 2 twos are 4, remainder 1. Now only the sign. It will give the sign of the first operand. So first operand is positive, positive. Your first operand is negative, negative. First operand positive, positive. First operand negative, negative. Many people think here negative, negative cancel, which happens in Python. Here it's not like that. Here it assumes the sign of the first operand. So whatever is the sign of the first operand, that you will get. Okay, so that is the rule you have to remember. Okay, and how it will work for strings and the other things, one by one we will discuss. Don't worry. So arithmetic operators are used to perform mathematical calculations, isn't it? Table I'm giving. See here. This is post increment decrement. Post. So as it is post increment decrement, the side effect is what? X is incremented or X is decremented. But what the result is? The old value. Okay. So it is post increment decrement. And always remember, increment and decrement can be applied only on variables. You cannot apply on constant values like literals and all. Okay. So as it is post, what it does, it gives the old value and then updates it. साइड इफेक्ट तो होने ही वाला है. ठीक है, साइड इफेक्ट क्या होगा? x एक से बढ़ने वाला है या एक x एक से डिक्रीज. बट रिजल्ट क्या है? करंट वैल्यू यूजर्स फर्स्ट वैल्यू एंड देन अपडेट. ठीक है. एंड इस केस में देखो, प्लस प्लस एक्स माइनर, इट इज प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. So in this case, it will update it first and then give you the latest value. So updates first and then uses value. But still, in both cases, are the variables updated? And by how much? By 1. ये एक से बढ़ाएगा, ये भी एक से बढ़ाएगा, ये एक से कम करेगा, ये भी एक से कम. Then this is assertion and negation. Okay? Assertion, negation. Plus x, minus x. Plus x keeps positive, positive, negative, negative. Negation changes the sign. पॉजिटिव है तो निगेटिव होगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव, इसलिए उसको निगेशन का है और इसको असर्शन. अब इसका प्रॉब्लम है कि यही अगर हमने स्ट्रिंग पे अप्लाई किया तो कैसे बिहेव करता है देखेंगे. मीन्स अगर डबल कोट 5 है और उसके पहले अगर प्लस आ गया, गेटिंग, तो इट विल कन्वर्ट दैट स्ट्रिंग टू नंबर. ओके, तो दैट वी विल डिस्कस. देन कम्स डबल स्टार, which is raise to operator, exponential. Then our standard multiplication, division, modulus. These three are having same precedence, remember, and the associativity is left to right. Okay, so multiply, divide, and remainder. And last is binary addition and binary subtraction. These are plus minus. Don't confuse with this. This is a assertion negation. It is a unary operator. This is a binary operator, adding two numbers, subtracting two numbers. Its associativity is also
left to right. Okay. And now only the thing is about strings. If you're using plus on string data type, okay, if you're doing it on a string data type plus, then it does concatenation. Okay, it will do the work of concatenation. And again, in that, if one is a string and another is any other data type, the other data type is converted to string. Like here, if you have double quote 10 and plus 10. So what happens is this 10 will get converted to string and it will do concatenation 1010 as a new string. Okay? But for other operations like multiplication, division, and all, string will be converted to number. In case of plus, what is happening? We have string and other data type, any other. That other data type is converted to string and concatenation takes place. But other than plus, if you're doing the same operation on some other operation on string, then the string is converted to number. Understanding? Like if I'm having double quote 10 and I'm writing multiply 2. Okay? So this string is converted to number and this will become 10 and then 10 into 2 is 20. You'll get answer 20. But now some may say like if that string contains the number, okay, the string contains contains such thing which is not a number. I want to say like that. Like double quote RAM है and आप multiply by 2 कर रहे हो. Getting? पाइथन में ये कुछ अलग है, ये रिपीटेशन का काम करता है. यहाँ अगर आप डबल कोट राम मल्टीप्लाई बाय 2 का, तो राम it will try to convert into number, but it won't be. So it becomes nan. That is not a number. And the ultimate answer is nan only. There is not a number. The final answer also will be nan. Okay? So that you should remember. I'll take multiple combinations. You'll get an idea. See. The plus operator performs string concatenation. If one operand is a string, okay, automatic. When you're using plus on a string, एक string है, दूसरा कोई भी रहने दो. एक string है और दूसरा कोई भी रहने दो और अगर plus किया है, तो ऑटोमेटिक concatenation होने वाला है. तो वो जो दूसरा है वो string में convert होगा और फिर दोनों में concatenation होगा. But if you are doing other operations on string, बाकी कोई भी operations अगर string पे कर रहे हो, तो string number में आ जाएगा. Other operators attempt to convert string to number. String will get converted to number. ठीक है? ओके, तो बेसिक आइडिया इज क्लियर. मैं चाहे तो ये मॉड्यूलस का भी पहले आउटपुट दिखा देता हूं. ओके, अरिथमेटिक का कल तो हमने कुछ डेमोस देखे थे. console.log यू आर फाइंडिंग आउट 5 डिवाइड बाय 2 अगर मैं लेता हूं. console.log 5.5 मॉड्यूलो 2 लिखता हूं और console.log I'm writing 5 modulo 2 minus 5 modulo 2 5 modulo minus 2 minus 5 modulo minus 2. ठीक है? Few outputs you just try to find out. See, can you check? The last result you can check. It takes the sign of the first operand. So does it give for all 4 1 only? देखो चारों के लिए आउटपुट 1 है, बट साइन क्या लिया है? फर्स्ट ऑपरेंड. तो पहले ऑपरेंड का साइन पॉजिटिव था इसलिए 1. इधर पहले ऑपरेंड का साइन नेगेटिव है इसलिए -1. यहाँ पॉजिटिव है इसलिए 1 और यहाँ नेगेटिव है इसलिए -1. एंड यहाँ भी दिख रहा है 5.5 mod 2 यू आर गेटिंग 1.5.
एंड यहां देखो दोनों इंटीजर है 5 डिवाइड बाई 2, देन ऑल्सो द आंसर इज फ्लोट 2.5. Okay, concept, I hope it is clear. But when we'll take some ample combinations of different data type, you'll come to know. See, if I'm writing double quote 10 plus double quote 20, it's going to do concatenation. Okay? But the same thing if I do multiplication, it will get converted into numbers. Like console.log double quote 10 लिखा और मैंने प्लस नॉर्मल 100 लिखा है, तो इस केस में क्या होने वाला है, 100 स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा एंड कॉन्कैटिनेशन होगा. बट कोई भी बाकी ऑपरेशन है कंसोल डॉट लॉग, जैसे एक स्ट्रिंग है और मल्टीप्लाई कर रहे हो, और दूसरा कोई स्ट्रिंग भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, लाइक 5. तो इन दिस केस स्ट्रिंग इज कन्वर्टेड टू नंबर, नंबर इज नॉट कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग. तो ये 5 5 ही रहेगा और ये डबल कोट 10 10 बनेगा और आंसर 50. बट इस केस में स्ट्रिंग स्ट्रिंग रहेगा, नंबर स्ट्रिंग बन जाएगा. तो ये डबल कोट 100 एंड फिर ज्वाइन होकर 10100 बनेगा. वैसे मल्टीप्लीकेशन में भी देखो दोनों नंबर्स बन जाएंगे. ठीक है, आई डेंट सेव. ठीक है, कैन यू सी द आउटपुट? प्लस was there between string concatenation 1020. सेकेंड मल्टीप्लीकेशन है तो ऑटोमेटिक ये दोनों इंटीजर्स बन गए, तो 10 इंटू 20 200. ये एक स्ट्रिंग है और एक नंबर है बट प्लस ऑपरेटर है, तो प्लस है तो दूसरा स्ट्रिंग बन जाता है कॉन्कैटिनेशन 10100. Here one is a string, another is a number, and you're doing multiplication. In that case, the string gets converted to number, and therefore 10 into 5 you get 50. ठीक है? Okay, now some examples we'll see so that you'll come to know. तो यहां तक क्लियर है? जितना बताया उतना क्लियर है? मे भी दिमाग में और बहुत सारे डाउट्स आए रहेंगे या मेनी कॉम्बिनेशंस दिमाग में आ चुके रहेंगे, सब देखेंगे एक एक करके. ठीक है, देखो ये एक सेट ऑफ एग्जाम्पल दिया है मैंने. 1 + 2 बोथ आर नंबर्स, देखो डायरेक्ट एडिशन 3. अब यहां देखो एक स्ट्रिंग है और एक नंबर है बट प्लस है, तो आज ही बताया ना, प्लस में अगर एक स्ट्रिंग और एक नंबर है, ऑटोमेटिक दूसरा वाला स्ट्रिंग बन के कॉन्कैटिनेशन होगा. Therefore, you get 1. Again, the same situation here. One is a number and another is a string. The number gets converted into string and concatenation takes place. So ये string बन गया, 1 2 आ गया. यहां देखो दोनों स्ट्रिंग और प्लस है, तो ऑलरेडी वो तो नेचुरल बिहेवियर है जावास्क्रिप्ट का. क्या? when you are trying to do plus operation on two strings, it will do concatenation. And if you are doing plus on one string and some other data type, the other data type is converted to string and still concatenation. ठीक है? Okay, give me confirmation so that we'll go to some more combinations. Yes, it is confirmed. Okay. Understood. Okay. We'll go with some many more combinations. Abundant of combinations they have made, so that after observing all the examples, you only should make some conclusions. Okay. Like in this case. Now, this example purposely I'm taking to tell you the associativity. Like both are plus, isn't it? This is also plus plus. So as the precedence of both the plus is same, associativity will come into picture. So in the first example, it will go left to right. Left to right, so 1 plus 2, both are number, so normal addition, that is 3. But 3 plus double quote 3, so that 3 will become string. And then concatenation, that is 3 3. Getting, no? This 1 plus 2 will become 3. And then 3 plus double quote 3. But 3 plus double quote 3, so this 3 is going to become string. Because one is a string, the other automatic string. And now concat, so you got this. Again, here also the associativity is left to right only.
because it is plus. Standard rule is that लेफ्ट टू राइट associativity. तो ये लेफ्ट टू राइट जाएगा, तब देखो पहला स्ट्रिंग है और दूसरा नंबर है, तो इसको पहले स्ट्रिंग बना देगा, कनकैट करेगा, फिर वापस नया स्ट्रिंग 1 2 बनेगा। अब 1 2 प्लस 3, तो अगेन ये 3 को स्ट्रिंग बनाएगा और फिर इन दोनों को कनकैट करेगा और आपको 1 2 3 मिलेगा। राइट? मेनी कॉम्बिनेशंस मैंने लाए हैं, ऑल पॉसिबिलिटीज, अलग अलग डेटा टाइप्स पे, सो दैट इट बिकम्स वेरी परफेक्ट फॉर यू। रूल्स आपको इतना क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो ये एक सेट हुआ, ये दूसरा सेट ऑफ एग्जाम्पल, अभी ये वाले एग्जाम्पल। अब यहां देखो, आप लोग अरेथमेटिक कर रहे हैं बुलियन एंड नंबर पे। ओके, लॉट ऑफ दिस थिंग्स आर नॉट एप्लीकेबल इन जावा। जावा बहुत स्ट्रिक्ट लैंग्वेज है। जैसे जावा में अरेथमेटिक ऑन बुलियन इज नॉट अलाउड। ओके, जावा में ये सब चीजें ठीक है कि एक स्ट्रिंग और एक नंबर है तो नंबर स्ट्रिंग बन जाता है इन कॉन्कैटिनेशन, दैट इज सेम। बट इन जावा यू कैन नॉट डू अरेथमेटिक ऑपरेशंस ऑन बुलियन। जावा में बुलियन बहुत स्ट्रिक्ट डेटा टाइप है। वो ऐसा है कि किसी में भी कास्ट नहीं होता है, कोई भी बुलियन में कास्ट नहीं होता है। जावा स्क्रिप्ट इज अ लूजली टाइप लैंग्वेज। ओके, तो देखो, ट्रू इज इंटरनली ट्रीटेड एज वन and therefore 1 plus 1 you get 2. False is internally treated as 0. So 0 plus 1, 1. Null is also internally casted as 0. Therefore 0 plus 1, 1. But if you have an undefined variable and you're adding 1, it is nan. Nan means not a number. Means it is illegal to do arithmetic on an undefined variable. Getting? You can try the outputs. Console.log. चेक करके देख सकते हो। देखो, ट्रू प्लस ट्रू ऐसा भी करके देख सकते हो। ट्रू प्लस 1 लिखा है या फॉल्स प्लस 1 लिखा है, और हैव रिटन नल प्लस 1 और अनडिफाइंड प्लस 1। यू कैन ट्राई ट्रू प्लस ट्रू ऑल्सो, मे बी ऐसा कॉम्बिनेशन भी आने वाला रहेगा आगे, चेक करो। नाउ इफ आई टेक ट्रू प्लस ट्रू, इंटरनली 1 1 एंड 1 प्लस 1, मीन्स बताना क्या है कि ये सारे अरिथमेटिक कैसे अलग अलग डेटा टाइप्स पे चलते हैं। दे आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मैथमेटिक्स। स्टैंडर्ड मैथ्स कहता है कि अरिथमेटिक सिर्फ नंबर्स पे वर्क होना चाहिए। देखो, तो दिस इज 1 1 plus 1 2, 0 plus 1 1, 0 plus 1 1, and when you do arithmetic on an undefined, it is always nan, not a number. Nan means not a number, and true plus true is 2. Getting? फिर देखो, अभी मैंने एक कॉम्बिनेशन लाया, ये भी थोड़ा सा वियर्ड है समझने के लिए। ठीक है, इधर तक पहले क्लियर है? ये जो 3 सेट मैंने सॉल्व करके दिए, ये क्लियर? Clear. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इसमें हम क्या कर रहे हैं? वी आर डूइंग अरिथमेटिक ऑन अरे एंड ऑब्जेक्ट। हाउ डू यू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट इन पाइथन? By brace bracket. And how do you represent array named object in brace bracket and array in square bracket? So if I'm having an empty array or an empty object and I'm trying to do arithmetic on it, how it works? ठीक है, तो देखो यहां क्या होता है, when you are trying to do arithmetic on array plus array, so this array is converted into a string and that string is a empty string. देखो कैसे कौन स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा, मींस इन शॉर्ट ना इसका टू स्ट्रिंग कॉल होता है। इधर टू स्ट्रिंग कॉल होगा अगर आपने एक अरे एंड अरे के बीच में प्लस किया, अरिथमेटिक बिटवीन टू एम्प्टी अरेज। सो व्हाट इट डज इज इट कॉल्स टू स्ट्रिंग ऑफ दैट अरे। अरे भी एक ऑब्जेक्ट है ना अकॉर्डिंग टू जावास्क्रिप्ट, तो डॉट टू स्ट्रिंग ये कॉल होगा। ठीक है, एंड व्हाट दैट टू स्ट्रिंग रिटर्न्स फॉर एन एम्प्टी अरे, एम्प्टी स्ट्रिंग। अब कहोगे ये एम्प्टी नहीं, इसमें कुछ वैल्यू है, तो जो वैल्यू है वही स्ट्रिंग में आएगा। लाइक इसमें 10 20 30
तो इट विल गिव यू अ स्ट्रिंग कंटेनिंग 10 कॉमा 20 कॉमा 30 कॉमा, ऐसी एक स्ट्रिंग आ जाती है। ठीक है, तो करंटली आई एम टॉकिंग अबाउट एम्प्टी अरे। सो एम्प्टी अरे का स्ट्रिंग क्या बन जाता है? एम्प्टी स्ट्रिंग प्लस एम्प्टी स्ट्रिंग, and when you join the empty string with the empty string, you'll get an empty string only. ठीक है, ये पहला पार्ट तो समझ में है। दूसरे पार्ट में देखो, जब पहले पहला अरे लिखा है एंड दूसरा ऑब्जेक्ट लिखा है, बहुत वियर्ड कंसेप्ट है ये जावास्क्रिप्ट के, एंड कभी कभी हमें लगता है कैसे ये बिहेवियर्स चल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डिजाइनर, इनके रूल्स जो ईसीएमए ने स्टैंडर्ड्स बनाए उसके हिसाब से चल रहा है। तो स्क्वायर ब्रैकेट प्लस ब्रेस ब्रैकेट, दिस इज द एम्प्टी अरे, दिस इज द एम्प्टी ऑब्जेक्ट। अभी अभी बताया इसका टू स्ट्रिंग जब करोगे, डॉट टू स्ट्रिंग कॉल होता है। डॉट टू स्ट्रिंग इज अ मैजिक मेथड। मैजिक मेथड मीन्स मेथड विच इज गेटिंग कॉल्ड इम्प्लिसिटली। मैजिक मेथड्स मीन्स मेथड्स जो इम्प्लिसिटली कॉल होता है, हमें कॉल करने की जरूरत नहीं यूजिंग डॉट ऑपरेटर। तो रियलिटी में वो डॉट ऑपरेटर से ही कॉल हुआ है, डॉट टू स्ट्रिंग, बट हमने नहीं किया। द इंजन इज डूइंग द वर्क। सो इसका टू स्ट्रिंग बन गया एम्प्टी स्ट्रिंग, और जब ऑब्जेक्ट है तो उसका टू स्ट्रिंग जब कॉल होता है ना, डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, तो ऑब्जेक्ट का टू स्ट्रिंग ये रिटर्न होता है, स्क्वायर ब्रैकेट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ये स्टैंडर्ड है। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का टू स्ट्रिंग अगर आप चेक करते हो, मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमने क्या फाइंड आउट किया, टू स्ट्रिंग, तो यू गेट दिस थिंग ओनली। गेटिंग? तो इस साइड से एक स्ट्रिंग क्या आ गया, वर्ड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये एक स्ट्रिंग में आ गया। और इस साइड क्या स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग। फिर ये एम्प्टी स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैट होती है एंड हमें ये वाला स्ट्रिंग मिलता है। अंडरस्टैंडिंग? ठीक है। अब तीसरे केस का देखो, और ही वियर्ड केस है। मीन्स अभी कुछ लोगों को लगेगा थर्ड केस में भी यही आना चाहिए था, बट ऐसे नहीं होता है। अगर आपने पहले ब्रेस ब्रैकेट लिखा है, ओके, प्लस स्क्वायर लिखा है, हाउ इट वर्क्स, सी गाइस, what it does is when you do like this, it treats this first thing as a block and not as an object. Empty block consider करता है। Getting? You can even ask to the AI engines, any AI tools if you have, you can ask in this situation what happens. Okay? तो ब्रेस ब्रैकेट प्लस स्क्वायर किया, तो इसको अभी ऑब्जेक्ट नहीं ट्रीट कर रहा है, इट इज ट्रीटिंग लाइक अ ब्लॉक, एम्प्टी ब्लॉक। हम ब्लॉक्स लिखते हैं ना, इफ के लिए ब्लॉक लिखते हैं, एल्स के लिए ब्लॉक, फंक्शन बॉडी के लिए ब्लॉक लिखते हैं। तो ये एम्प्टी ब्लॉक ट्रीट होता है, एंड एज वो एम्प्टी ब्लॉक है, वो इग्नोर हो गया, वो एज अ ब्लॉक है, चला गया, इग्नोर। एंड इट विल टेक ओनली दिस प्लस स्क्वायर। अभी प्लस स्क्वायर का इसका जो स्ट्रिंग कन्वर्जन है, स्क्वायर मीन्स अरे, तो इसका एम्प्टी अरे का स्ट्रिंग कन्वर्जन क्या था, एम्प्टी स्ट्रिंग। यस नो गाइस, जस्ट नाउ हमने देखा ना, एम्प्टी अरे का कन्वर्जन में एम्प्टी अरे का स्ट्रिंग क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग। अभी क्या होता है, वो एम्प्टी स्ट्रिंग पे प्लस अप्लाई हो रहा है, विच इज दैट प्लस ऑपरेशन, असर्शन। अभी इसके पहले वो टेबल में देखा ना हमने, असर्शन ऑपरेटर, असर्शन एंड निगेशन। तो असर्शन ऑपरेटर जब एम्प्टी स्ट्रिंग पे लगता है, तो एम्प्टी स्ट्रिंग नंबर में कन्वर्ट होगा। अभी उल्टा, ये असर्शन ऑपरेशन में सिर्फ प्लस, ओनली प्लस, नो बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि ये तो इग्नोर हो गया, ये एम्प्टी ब्लॉक है। इट विल जस्ट इग्नोर इट एज अ एम्प्टी ब्लॉक एंड कंसिडर प्लस एम्प्टी स्ट्रिंग। नाउ व्हेन यू डू प्लस एम्प्टी स्ट्रिंग, नाउ इट इज लाइक एन अरिथमेटिक। अभी ये नंबर का काम कर रहा है, तो एम्प्टी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करेगा, एंड एम्प्टी स्ट्रिंग का नंबर कन्वर्जन जीरो होता है, and therefore you get answer 0. Understanding? So why you get answer 0? Because here it is treating it like a block, and as वो empty block है वो ignore हुआ। फिर क्या बन गया,
प्लस स्क्वायर, वो यूनरी ऑपरेशन हो गया अभी, प्लस स्क्वायर, एंड स्क्वायर का स्ट्रिंग कन्वर्जन एम्प्टी स्ट्रिंग, स्क्वायर का स्ट्रिंग कन्वर्जन एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग पे जब असर्शन लगेगा तो वो असर्शन ऑपरेशन है ना, असर्शन निगेशन हमेशा किस पे होता है, नंबर्स पे, तो ये इसको नंबर में कन्वर्ट करेगा, एंड एम्प्टी स्ट्रिंग का नंबर क्या है, जीरो, तो प्लस जीरो मीन जीरो, एंड देयरफॉर यू गेट आंसर जीरो, इफ यू वांट यू कैन डू इट, गेटिंग। बट इसमें अगर एक चेंज किया कि आपने इसको अगर ब्रैकेट में डाल दिया ना, किसको, ब्रेस ब्रैकेट को, किसमें डाल दिया, राउंड ब्रैकेट, and then square, then now it will not treat it as a block. Okay, अभी ये किस क्या ट्रीट करेगा, ऑब्जेक्ट, अभी ये ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा, एंड फिर वो ऑब्जेक्ट का स्ट्रिंग कन्वर्जन ये है, ऑलरेडी बताया। ओके, तो ये जो स्क्वायर में आता है ना, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये बनेगा, और फिर इसको कॉन्कैट क्या होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग विच इज सिंग। ठीक है, करके देखो, आपको चाहिए, यू कैन डू इट। सी, console dot log, if you are doing square plus square, right? Then square plus brace bracket. Then brace bracket plus square. And try doing with brace bracket plus brace bracket also. ठीक है, अब ब्रेस ब्रैकेट प्लस ब्रेस ब्रैकेट भी ट्राई करके देखो, एज मैंने नहीं दिया है, बट चेक करो। ठीक है, सी, कैन यू सी दिस? अब पहले वाला रूल तो समझ में ही आया, फर्स्ट वन, बराबर है ना? सी, डायरेक्टली मैंने ये प्रिंट में लिखा है ना, 1 minute, what we'll do is, now it has considered this way, what I told. Instead, what we'll do is, I'll show you. ये जो विंडो होता है, यहाँ राइट क्लिक, इंस्पेक्ट पे आओ। एज वो मैंने कंसोल को पास किया है ना, एज वो कंसोल को है, तो इसलिए वो नॉर्मल वर्क हुआ, कैसे, एम्प्टी एम्प्टी ज्वाइन हुआ, फिर एम्प्टी विद दैट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ भी ऑब्जेक्ट विथ एम्प्टी, एंड यहाँ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये अपने जो स्टैंडर्ड चल एक्सपेक्टेड था वही। बट इफ आई कम हियर इन द कंसोल, ठीक है, यहां जाने का है, यहां भी आप टाइप कर सकते हैं कंसोल डॉट क्लियर, डन। नाउ हियर you can check, just write square plus square, is it an empty string, check, square plus brace bracket, is it giving object object, देखो brace bracket plus square, is it giving जीरो, जो मैंने बताया था कि इसको उसने ब्लॉक ट्रीट किया, एंड वो इग्नोर हुआ, फिर प्लस एम्प्टी स्ट्रिंग, तो प्लस एम्प्टी स्ट्रिंग, तो एम्प्टी स्ट्रिंग कन्वर्टेड टू नंबर इज जीरो, गेटिंग। एंड सपोज मैंने ब्रेस ब्रैकेट प्लस ब्रेस ब्रैकेट लिखा, इट इज नैन, वाई नैन, बताता हूं अभी इसका भी नैन क्यों आया, ऐसे। बट जब ये पूरा हमने कंसोल को भेजा है ना, तो वो राउंड में आ रहा है ना, इट इज कमिंग इन दैट लॉग, as I'm writing console.log and then doing it. Therefore, here it is doing what we were expecting. What, empty plus empty, empty plus square object object, square object object plus empty, square object object, square object object. So that way it was concatenating. Is it right or no? See, ये तो जैसे expected था वैसे ही आ गया, because ये console.log में, and अगर आप console window में, when you come to the terminal, console terminal, this is just an interactive environment. It is called as REPL, read, evaluate, print, loop. So generally, when we come to this console prompt, this is when you are just debugging, or not debugging, you can say, step by step you are learning. You're learning small things, and you're just checking.
how it is working. You're not going to the big scale codes. You're at a learning stage, and only the part you want to test how it works, you want to check. So then you come to this interactive environment. So see here on the interactive environment, if I directly do it, you get that way the answer which I showed you on the slide. Getting, guys? See here, brace bracket plus brace bracket. So why brace bracket plus brace bracket comes nan here, whereas here it is giving object, 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 object. Understanding, guys? Why in that console environment it is coming nan? I tell you. Okay? Now, is it going to ignore this as a block, empty block? It will ignore it. So remains this much plus brace bracket. Now this is going to call its toString. As it's an object, it will call its toString. What will that toString return? A string containing that square object object. And now what you're doing, you're applying this unary plus on this string. So will it try to convert this string to a number, guys? जो अभी थोड़ी देर पहले देखो प्लस एम्प्टी स्ट्रिंग पे जब लगाया तभी भी उसने एम्प्टी स्ट्रिंग को किसमें कन्वर्ट किया, नंबर. बट एम्प्टी स्ट्रिंग का नंबर 0 आया इसलिए 0 मिला. बट जब इसको नंबर में कन्वर्ट करने जाएंगे तो कैन इट कन्वर्ट टू नंबर? ये स्क्वायर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्क्वायर, कैन इट गेट कन्वर्टेड टू अ नंबर? नो, एंड देयरफॉर यू गेट nan over there. ठीक है? ओके, तो जस्ट कंफर्मेशन देते जाओ गाइस, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, आई विल जस्ट कीप टीचिंग एंड गोइंग अहेड. टीच सिखा रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ. ठीक है, तो बीच बीच में कंफर्मेशंस भी देते जाओ. सर एक बार वो लास्ट पार्ट वाला दिखाइएगा तो अभी जो किए थे जस्ट नैन. इन द कंसोल नहीं अभी एनवायरनमेंट. यही पर बैक यहाँ इसी में. हाँ नैन, हाँ ये यही पार्ट. हाँ, मीन्स क्यों नैन है ये बताऊं. हाँ वो सेकंड वाला वो कन्वर्जन हुआ था ना ऑब्जेक्ट में. हाँ, तो व्हाई इट हैज कम नैन, दैट आई हैव टू टेल यू ना. मुझे वही बताना है कि क्यों नैन आया, बताता हूँ. देखो, सी, आपने लिखा ब्रेस ब्रैकेट प्लस ब्रेस ब्रैकेट. हाँ, बट अगर ये पूरा आपने लिख, जस्ट इतना लिख के नहीं चेक किया है, ये पूरा अगर आपने कंसोल डॉट लॉग को भेजा है तो नहीं आएगा नैन. नॉर्मल ये जो है ना, ऑब्जेक्ट 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 ऑब्जेक्ट, ऐसे दो बार कॉन्कैट होकर आ जाएगा. ओनली दिस मच व्हेन यू टाइप इन दैट एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट जो है ब्रेस ब्रैकेट, तब नैन आता है. तो क्यों बताता हूं. ये पहला वाला इसने एज अ ब्लॉक ट्रीट किया, देखो, ट्रीटेड एज अ ब्लॉक. तो एज वो ब्लॉक है, एम्प्टी ब्लॉक, वो इग्नोर हो गया. इग्नोर हो गया, इतना ही रह गया. ठीक है, प्लस ब्रेस ब्रैकेट. नाउ व्हेन यू आर राइटिंग प्लस ब्रेस ब्रैकेट, अब ये जो ब्रेस ब्रैकेट है वो अभी ब्लॉक नहीं है, अभी ऑब्जेक्ट है. यही तो कंफ्यूजन है कि जावास्क्रिप्ट ब्रेस ब्रैकेट को ब्लॉक भी ट्रीट करता है एंड ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए भी ब्रेस ब्रैकेट है. तो अभी ये ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहा है, ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहा है, तो इसका डॉट टू स्ट्रिंग कॉल कर रहा है, यहां डॉट टू स्ट्रिंग. तो इसका जो टू स्ट्रिंग कन्वर्जन होगा तो आपको ये मिल जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट ऑब्जेक्ट स्मॉल ऑब्जेक्ट कैपिटल ऑब्जेक्ट, ऐसा पूरा एक स्ट्रिंग में आ गया. अभी ये स्ट्रिंग पे असर्शन ऑपरेटर लग रहा है, प्लस साइन, प्लस पूरा स्ट्रिंग. तो ये असर्शन ऑपरेशन जो होता है वो इस स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने जाएगा, बिकॉज प्लस असर्शन इज अ न्यूमेरिक ऑपरेशन. पॉजिटिव को पॉजिटिव रखेगा, निगेटिव को भी निगेटिव रखेगा. तो इस पूरे को किसमें कन्वर्ट करने जाएगा, नंबर. बट ये नंबर में कन्वर्ट ही नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो ना उसमें क्या है, स्क्वायर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्लोज स्क्वायर. तो ऐसी वाली स्ट्रिंग कभी नंबर में कन्वर्ट हो सकती है क्या? नहीं. तो इट गेट्स कन्वर्टेड टू नैन. इसका कन्वर्जन क्या बन जाएगा, नैन, एंड इसलिए आंसर नैन आ गया. और जो फर्स्ट वाला है उसको ये एज ए एम्प्टी ब्लॉक ट्रीट कर रहे हैं ना. हाँ, दिस इज अ एम्प्टी ब्लॉक, इग्नोर्ड, फिर प्लस ब्रेस ब्रैकेट. बट अभी ब्रेस ब्रैकेट एज अ क्या है, असर्शन ऑब्जेक्ट के साथ है.
हाँ असर्शन के साथ है। तो पहले तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो फिर उसका स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग कॉल करेगा। अब उसका टू स्ट्रिंग ये रिटर्न कर रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट ये, स्क्वायर ब्रैकेट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। बट ये वाली जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग का नंबर कन्वर्जन होना पड़ेगा क्योंकि उसके ऊपर असर्शन लगा है प्लस। अभी थोड़ी देर बाद इसके ऊपर भी चला था, व्हेन वी हैड डन ओनली दिस थिंग। तो तब देखो जब असर्शन ऑन स्क्वायर चला, तब आंसर जीरो आया था यहां। ये तो इसने ब्लॉक ट्रीट किया, उसको छोड़ दिया। फिर प्लस स्क्वायर, अभी प्लस स्क्वायर हुआ तो इसका भी टू स्ट्रिंग कॉल होता है, अरे का भी टू स्ट्रिंग कॉल होगा। एंड एम्प्टी अरे का टू स्ट्रिंग क्या आएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग, एंड उस पे प्लस। बट एम्प्टी स्ट्रिंग जब नंबर में कन्वर्ट होता है, तो एम्प्टी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो बन जाएगा जीरो। तो जीरो का असर्शन जीरो ही, इसलिए आंसर जीरो। बट ओके, यहाँ क्या बट हुआ, इसमें हाँ तो ठीक है, यहाँ, सेकंड वाला पॉइंट थोड़ा सा मेरे को क्लियर है, क्योंकि वो असर्शन पार्ट का है। तो नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा तो उसका एक्चुअल में नहीं हो सकता, तो उसको नैन ट्रीट हाँ कर रहा है वो। हाँ बट फर्स्ट एग्जैक्टली। वाला जो है, जो ब्लॉक है, मतलब असर्शन से पहले वाला जो ब्लॉक है, तो उसको हम लोग ट्विस्टिंग में क्यों नहीं ले सकते, उसको ब्लॉक में क्यों ले रहे हैं? द रूल इज लाइक दैट कि पहले अगर ब्लॉक आए तो इट इज इग्नोरिंग इट एंड मेकिंग इट एज अ ब्लॉक। वो एक एज अ ब्लॉक ही ट्रीट कर रहा है उसको फर्स्ट आने पर। यानी हाँ, बट अगर ये पूरा ऐसा राउंड में कहीं भेज रहे हो ना, जैसे कंसोल डॉट लॉग, तब नहीं होगा। तब ये दोनों ऑब्जेक्ट ही ट्रीट होगा। करके देखो। ओके। सी, और आई एक शो चीज यू। था ये, ठीक है, इसको पहले कर लीजिए। सी, अगर मैं यहां लिखता हूं कंसोल डॉट लॉग, ओके, लॉग, एंड देन आई एम राइटिंग ब्रेस ब्रैकेट प्लस ब्रेस ब्रैकेट। तो एज ये पूरा एक्सप्रेशन राउंड ब्रैकेट में आ गया ना, तो अभी दोनों को टू स्ट्रिंग करेगा। तो इसका टू स्ट्रिंग आएगा स्क्वायर ब्रैकेट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इसका भी आएगा स्क्वायर ब्रैकेट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। दोनों स्ट्रिंग है, तो दोनों स्ट्रिंग में जब प्लस आता है तो क्या होने वाला है, कॉन्कैटिनेशन। तो वो दो स्ट्रिंग्स का कॉन्कैटिनेशन देता है, देखो। बट सेम थिंग जब आपने किसमें नहीं लिखा था, सेम थिंग व्हेन यू हैड नॉट रिटर्न इन ब्रैकेट, ये ऐसे लिखा था। तो कंसिडर क्या हो रहा है, पहला पार्ट एक ब्लॉक है और प्लस ये दूसरा एक ऑब्जेक्ट है, करेक्ट, एंड इसलिए नैन आता है। ओके। आईडी में थोड़ा सा मेरे को पूछना था, आईडी में अगर आप वापस जा सकते हैं तो। हम्म, अब इसमें जो यहां तो फर्स्ट है। वैसे भी मैंने राउंड, वैसे भी मैंने ये राउंड में लिखा है, हम्म, तो वो ब्लॉक वगैरह इग्नोर होने वाला नहीं, यहाँ स्टैंडर्ड कन्वर्जन्स होने वाले हैं। ये वो एम्प्टी एम्प्टी स्ट्रिंग स्ट्रिंग है। होना चाहिए ना, दो मतलब फर्स्ट हाँ वाला उसको ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये कंसिडर कर हाँ, रहा है तो कंसोल आया है में। ना यहाँ एम्प्टी आउटपुट ही है यहाँ, एक के लिए, आई थिंक। हाँ, ओके, यहाँ एक एम्प्टी आउटपुट आएगा, ओके, ओके, ठीक है। करेक्ट। से चाहे तो बाकी के मैं प्लान कर रख देता हूँ। सी, इधर एक एम्प्टी ब्लैंक लाइन ही है, ठीक है, ये ठीक है। एंड सेकंड अगर मैं लेता हूं तो वो अभी बताया मैंने, ये एज अ एम्प्टी स्ट्रिंग, और ये वो स्क्वायर ब्रैकेट, ये पार्ट क्या बनने वाला है, स्क्वायर ब्रैकेट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो एम्प्टी स्ट्रिंग ज्वाइंड विथ स्क्वायर ब्रैकेट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, स्क्वायर ब्रैकेट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऐसे बनेगा। सी, वो पहला तो एम्प्टी और ये वो आ गया। थर्ड केस में भी वही होगा, थर्ड केस में भी वाइस वर्सा, यहां आ जाएगा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ये एम्प्टी स्ट्रिंग ज्वाइन करने के बाद वही मिलेगा, गेटिंग द थर्ड आउटपुट। सी, एंड फोर्थ केस में जब लोगे तो दोनों ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। अभी ये ब्लॉक की तरह इग्नोर नहीं करेगा, इसको किस में कन्वर्ट कर, एज ये राउंड में आ गया है ना, इट हैज कम इन राउंड, व्हाट इज हैपनिंग, इट इज कंसिडरिंग दिस एज अ ऑब्जेक्ट, दिस एज अ ऑब्जेक्ट। तो इसका टू स्ट्रिंग बन के क्या मिलता है, ये, और इसका टू स्ट्रिंग भी ये, एंड दोनों जब ज्वाइन होता है तो यूल गेट टू टाइम्स ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। सेव नहीं किया, सेव, टू टाइम्स। यहां भी वैसे ही हो सकता था, यहां अपने एनवायरनमेंट में भी ये जो आ गया है ना,
इसको अगर मैंने ब्रैकेट लिखा रहता था, देखो, तो इज इट गिविंग? जैसे ही मैंने उसको राउंड ब्रैकेट में डाला, तो अभी वो एज अ ब्लॉक की तरह इग्नोर नहीं कर रहा है, इट इज ट्रीटिंग इट एज अ ऑब्जेक्ट, एंड इसका टू स्ट्रिंग ये, और ये भी ऑब्जेक्ट है, उसका टू स्ट्रिंग ये, एंड ये दोनों स्ट्रिंग्स कॉन्कैट हो गए, क्योंकि प्लस है, रूल है ना, when you use plus between two string, the two strings are getting concatenated. Okay, so lot of जम्बलिंग मत करो सिर्फ, इसलिए मैंने बहुत सारे पॉसिबिलिटीज लेके आया हूं यहाँ। ठीक है, अब तो प्लस हुआ, अभी नंबर्स, अदर ऑपरेशंस भी देखते हैं, लाइक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन। तो पता है प्लस का काम हो गया, तो बाकी सब के लिए वो सेम बिहेव होने वाला है। See, when you're doing minus and as both are number, the standard subtraction, 5 minus 3. String minus a number, the string will get converted to a number. So ये double quote 5 5 बनेगा, double quoted 5 5, and 5 minus 2 is 3. यहां भी देखो दोनों स्ट्रिंग है एंड सबट्रैक्ट कर रहे हो, तो स्ट्रिंग नंबर बनता है, तो ये 5 बनेगा, ये 2 बनेगा, एंड 5 minus 2 3. ओके, तो दिस नीड नॉट टू बी शोन। अगेन बुलियंस एंड नंबर्स में कर रहे हो, तो देखो ट्रू माइनस वन, तो ट्रू वन है तो वन माइनस वन जीरो, फॉल्स जीरो है तो जीरो माइनस वन, नल भी जीरो ट्रीट होगा, तो जीरो माइनस वन माइनस। एंड इफ यू ट्राई टू यूज एन अनडिफाइंड इन एनी अरिथमेटिक, द रिजल्ट इज नैन, जो ये स्लाइड पे भी था, देखो अनडिफाइंड प्लस वन इज ऑलवेज अनडिफाइंड। ठीक है, क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, यहां देखो, यहां अरे है ना, ये इट इज अ एम्प्टी अरे। केयरफुली देखो, एम्प्टी अरे माइनस वन, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया एम्प्टी अरे का स्ट्रिंग कन्वर्जन क्या बनेगा, एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी अरे का स्ट्रिंग कन्वर्जन क्या बनेगा, इसका टू स्ट्रिंग कॉल होने वाला है, और इसका टू स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग लाके देता है, एंड एम्प्टी स्ट्रिंग माइनस वन। अभी ये एम्प्टी स्ट्रिंग नंबर में कन्वर्ट होगा, एंड एम्प्टी स्ट्रिंग का नंबर कन्वर्जन क्या है, जीरो, एंड फिर जीरो माइनस वन। अभी सेकेंड एग्जाम्पल में देखो, इट इज नॉट अ एम्प्टी स्ट्रिंग, it is a array containing one value. ठीक है, अभी यहां भी टू स्ट्रिंग कॉल होने वाला है, ये अरे है तो अरे का एक डॉट टू स्ट्रिंग कॉल होता है, अरे एक ऑब्जेक्ट है उसका डॉट टू स्ट्रिंग, एंड वो मैजिक मेथड है, उसको एक्सप्लिसिटली कॉल करने की जरूरत नहीं। तो जब इसका टू स्ट्रिंग कन्वर्जन होगा ना, तो यू विल गेट स्ट्रिंग 5, एक ही एलिमेंट है ना, तो वो एक ही एलिमेंट आ गया स्ट्रिंग में, माइनस वन, फिर ये स्ट्रिंग नंबर में कन्वर्ट होगा, दैट इज 5 minus 1, एंड फिर 5 minus 1 क्या बनेगा, 4, and you got 4. But the third case, when the array contains two values, 5 comma 6, ठीक है, माइनस वन, तो इसका भी स्ट्रिंग कन्वर्जन हो गया। बट ये अरे जब स्ट्रिंग में कन्वर्ट होता है, तो उसके एलिमेंट्स जितने भी है वो कॉमा सेपरेटेड एक स्ट्रिंग में आ जाते हैं, ऐसे 5 comma 6, दिस थिंग हमेशा याद रखना है, कोई भी अरे को जब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हो, तो यू गेट ऑल द एलिमेंट्स separated by comma in a string, but this string cannot be converted into a number because it contains comma, it's not a valid number, and therefore ये जब string में convert नहीं होगा, तो ये nan बनेगा, and nan minus anything is nan, so you get nan. Getting? You can check also कि कोई भी string array का string conversion कैसे। यहाँ देखो, for time being I'll just clear that. Okay, font थोड़ा सा बढ़ाना है। See, I've created an array 10 comma 20 comma 30. Getting? अब ये array तो बन गया, and suppose मैं उसका dot to string कॉल करता हूँ। See, is it returning? Square bracket 10 comma 20 comma 30 dot to string, ये क्या करता है, इसके जितने भी एलिमेंट्स है उनको ऐसे कॉमा से ज्वाइन करके उसकी एक स्ट्रिंग बना के देता है।
गेटिंग ना। और ये स्ट्रिंग का नंबर नहीं हो सकता है क्योंकि उसमें कॉमा है। इसलिए तो देखो 10, 20, 30 +20 लिखने गए, कहते अभी प्लस है ना तो इसलिए चल जाएगा। वाई? बिकॉज इतने का टू स्ट्रिंग क्या आने वाला है, वो पूरा इन स्ट्रिंग। यस नो? इसमें तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो एरर। वाई? बिकॉज इतने पार्ट का स्ट्रिंग कन्वर्ट होकर ये आ गया ना गाइस। एंड प्लस ऑपरेटर है ना, प्लस में एक स्ट्रिंग है तो दूसरा स्ट्रिंग बन जाता है, एंड कॉन्कैटिनेशन। बट अगर मैं सब्ट्रैक्शन करता हूं इस ऑपरेशन पे, इट इज नैन। वाई? बिकॉज ये पूरा स्ट्रिंग में क्या बनेगा, ये। और इसका नंबर तो कन्वर्ट ही नहीं हो, मैंने नंबर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इन देयरफॉर नैन। याद रखना ये माइनस साइन है, माइनस में एक स्ट्रिंग और एक नंबर है तो स्ट्रिंग नंबर बनता है, और प्लस में एक स्ट्रिंग और एक नंबर है तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग रहेगा, नंबर स्ट्रिंग बनता है, एंड कॉन्कैटिनेशन होता है। यानी तो वो दिमाग में फिट करो। whenever you're doing plus on any one string, प्लस ऑपरेशन किसी भी एक स्ट्रिंग पे कर रहे हो तो दूसरा ऑटोमेटिक स्ट्रिंग बन के कॉन्कैट होगा। बट इफ यू आर डूइंग एनी अदर ऑपरेशन, मैंने प्लस नहीं कर रहा हूं, मैं माइनस कर रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन, और उसमें अगर एक स्ट्रिंग इन्वॉल्व है, उसमें एक स्ट्रिंग इन्वॉल्व है और एक कोई दूसरा, तो स्ट्रिंग नंबर बनेगा, दूसरा वैसे ही रहेगा और स्ट्रिंग नंबर बनेगा। ये राइट? तो देखो ये वाली जो स्ट्रिंग बनती है ना, ये अरे की स्ट्रिंग ये है और ये नंबर नहीं बन सकता है, इसलिए नैन आता है। ठीक है? तो आई होप दैट पार्ट इज क्लियर। श्योर गाइज, इसमें कोई कंफ्यूजन? तो क्विकली थोड़े और एग्जांपल्स फटाफट बता देता हूँ। लॉट मेनी थिंग्स टू लर्न, राइट और नो? ऑपरेटर ये, बट ऑल दीज थिंग्स आर फाउंडेशन, ये आपका कॉन्क्रीट पार्ट क्रिएट कर रहा है। एक बार ये फाउंडेशन अच्छा हुआ तो बाकी चीजें बहुत फास्ट चलती है, राइट? इट इज सेड ओनली ना, फाउंडेशन अच्छा होगा तो बिल्डिंग अच्छी कंस्ट्रक्ट होती है, नहीं तो पहले बारिश में सब कुछ अपनी असलियत दिखाता है, वैसे होता है। तो ये क्लियर है? जस्ट कैन यू गिव मी द कंफर्मेशन फॉर दिस, एंड इफ यू हैव डाउट प्लीज आस्क मी। No, no response coming, so I should proceed further, I guess. Okay, चलो। जैसे मल्टीप्लीकेशन में भी देखो, अभी 2 into 3 दोनों नंबर है इसलिए स्टैंडर्ड मल्टीप्लीकेशन 6। स्ट्रिंग इंटू नंबर, जैसे कुछ लैंग्वेजेस में स्ट्रिंग इंटू नंबर लाइक पाइथन, तो इट विल जस्ट रिपीट द स्ट्रिंग दैट मच टाइम, 2 2 2, ऐसे 3 बार रिपीट करेगा। यहाँ नहीं होता है, यहाँ स्ट्रिंग नंबर में कन्वर्ट होगा, नंबर नंबर ही रहेगा, स्ट्रिंग नंबर बनेगा। एंड फिर मल्टीप्लीकेशन, तो 2 into 3 6, यहां भी देखो स्ट्रिंग इंटू स्ट्रिंग, इट विल कन्वर्ट स्ट्रिंग टू नंबर एंड देन द मल्टीप्लीकेशन। ऐसे ही समवॉट ना पीएचपी में भी है, ये सारे वेब बेस्ड लैंग्वेजेस जो होता है इनका ऐसे सब लूजली टाइप रूल्स है। ठीक है? तो ये पार्ट भी क्लियर है आई गेस, नॉट मच कंफ्यूजन। कमिंग टू मल्टीप्लीकेशन विद बुलियंस, देखो ट्रू तो 1 है, 1 into 2 2, फॉल्स 0 है, 0 into 2 0, नल भी 0 है तो 0 into 2 0। अनडिफाइंड, अनडिफाइंड को कभी भी नंबर में नहीं ला सकते, इसलिए वो नैन बनता है। एंड कोई भी ऑपरेशन में एक नैन है, पूरा रिजल्ट नैन है, याद रखना। इन एनी एक्सप्रेशन इफ एनी वन इज अ नैन, द एंटायर आंसर इज नैन। ओके? अगेन देखो, मल्टीप्लीकेशन विद अ अरे, तो आपको पता है अभी ये एम्प्टी अरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एम्प्टी अरे एम्प्टी स्ट्रिंग मल्टीप्लाइड बाय 2। अब तुम्हें पता है कि एक नंबर और एक स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग नंबर बनेगा, एम्प्टी स्ट्रिंग क्या बन जाएगा, जीरो नंबर, 0 into 2 इज 0। ठीक है? सेकेंड में एक ही एलिमेंट था, इसलिए इसका टू स्ट्रिंग क्या बनता है, सिंगल कोट 2 into 2, फिर ये स्ट्रिंग 2 नंबर 2 बन जाएगा, एंड 2 into 2 4। थर्ड केस में अगेन वो अरे है बट दो एलिमेंट्स है, इसका टू स्ट्रिंग कॉल होता है, याद रखना।
एंड टू स्ट्रिंग क्या रिटर्न करता है, वो सारे एलिमेंट्स कॉमा सेपरेट करके एक स्ट्रिंग में, तो 2,3 इन अ स्ट्रिंग and multiplied by 2. Now, can this string get converted to a number? No, it becomes nan. And in any operation, if one is a nan, the entire result is nan. Getting, guys? Hope it is clear. At any point, immediately you can pause me and ask me. ठीक है? चलो, तुम लोग अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो तो आई एम अज्यूमिंग यू आर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है? चलो, नेक्स्ट इस पे आता है. Understand. ओके, गुड गुड. Then coming to the next one, that is division. Again यहाँ भी वैसे ही रूल है. देखो दोनों नंबर्स है तो स्टैंडर्ड डिवीजन होगा 10/2 5, और एक स्ट्रिंग डिवाइड बाय एक नंबर तो स्ट्रिंग नंबर बनेगा. तो अगेन फाइनली 10 डिवाइड बाय 2 5 होंगे. ठीक है. एंड दिस इज सम स्पेशल थिंग यू शुड रिमेंबर. whenever you try to divide anything by zero, the answer is infinity, and negative by zero, negative infinity. ठीक है. यहां भी देख सकते हैं, या ये कोड में भी हम प्रिंट करके देख सकते हैं. ओके, सपोज आई एम डूइंग 10/0 और the -10/0 or 0/0. But according to JavaScript, 0/0 is nan. It treats it as not a number. तो इसलिए कहा ना, कुछ वियर्ड थिंग्स होते हैं, मैं कुछ एक्सेप्ट नहीं होता है, डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में नॉर्मली अपने मैथ्स के रूल्स बैठे हुए हैं. ठीक है. तो according to the language, when you do anything divided by zero, you get infinity value, negative infinity. But zero divided by zero is considered as nan. Getting? फिर फ्लोटिंग को, सॉरी, बुलियंस को भी डिवीजन में ला सकते हो. देखो जैसे अगर ट्रू है तो इट इज 1, सो 1 डिवाइड बाई 2 इज 0.5. 1 डिवाइड बाई 2 दोनों इंटीजर है, फिर भी आंसर फ्लोट है. याद रखना, जावास्क्रिप्ट में कुछ भी डिवीजन करो आंसर फ्लोट. ऐसे जावा में नहीं होगा. 1/2 अगर जावा में करने गए जीरो आ जाएगा. इंटीजर बाय इंटीजर इज इंटीजर. यहाँ इंटीजर बाय इंटीजर भी फ्लोट है, तो 1 डिवाइड बाई 2 0.5 आ गया. ठीक है. 0 डिवाइड बाई 2 जीरो आ गया. नल भी तो जीरो है ना इंटरनली, तो 0 डिवाइड बाई 2 जीरो. बट किसी भी ऑपरेशन में अनडिफाइंड आ गया तो वो नैन है, एंड अल्टीमेटली एक भी नैन है तो पूरा रिजल्ट नैन. ठीक है. फिर ये मॉड्यूलस का भी मैंने बताया था, साइन कैसे तय होता है, साइन ऑफ द फर्स्ट ऑपरेंड. ठीक है. चाहिए तो इसमें एक और भी ऐड कर देता हूं आपके लिए, एक ही एग्जांपल लिखा है ना उसमें. द फोर्थ वन ऑल्सो आई ऐड. -5 मॉड्यूलस -2. It will be -1, isn't it? See here. So 5 modulo 2, 1. चारों में 1 ही आने वाला है. Getting? Because when it takes modulus, it doesn't assume sign. वो assume करता है दोनों पॉजिटिव है, एंड पॉजिटिव लेके जो रिमाइंडर आएगा वो लेगा, सिर्फ साइन पहले ऑपरेंड का देगा. तो यहाँ पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव है, निगेटिव है इसलिए निगेटिव. यहाँ पहला पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, पहला निगेटिव है तो निगेटिव. ये मैंने करके भी दिखा है, डोंट वरी. ठीक है. टुडे ओनली हियर आई हैव शोन यू, आई गेस. सी देखो यहाँ, एंड तब देखो पहला पॉजिटिव था 1, पहला निगेटिव -1, अगेन पॉजिटिव इसलिए 1, निगेटिव -1. राइट. एंड जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम रहता है मॉड्यूलस में, when numerator is less than the denominator, वो न्यूमरेटर ही आएगा ना रिमाइंडर. वो तो बेसिक, ये तो मैथ्स रूल है. न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर से कम होता है तो रिमाइंडर इज द न्यूमरेटर ओनली, तो ये 2 ही आएगा. और यहां भी वैसे ही, ये कम है ना इससे, तो वही आने वाला है. ठीक है.
And if you do modulus on a string and a number or a boolean and a number, you know it, ये double quote 5 number बन जाएगा, that is 5, and 5 modulo 2 is 1. ये 1 बनेगा, तो 1 modulo 2, 1 modulo 2, तो न्यूमरेटर कम है तो 1 ही आएगा रिमाइंडर. फॉल्स इज 0, तो 0 modulo 2, तो 0 ही आएगा रिमाइंडर. ठीक है. थोड़े और एग्जांपल्स, थोड़े से और, एंड फिर वाइंड अप करेंगे आज के लिए. नेक्स्ट इज रेस टू. रेस टू का तो ऑलरेडी बताया था. तो 2 रेस टू 3 इज 8. 2 रेस टू 3 इज 8 ना. 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई होगा ना, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8. इसका एसोसिएटिविटी बताना है. दो बार यूज किया है तो सेम प्रेसिडेंस है, तो लेफ्ट टू राइट जाएगा या राइट टू लेफ्ट, तो इट विल बी राइट टू लेफ्ट. सो राइट टू लेफ्ट जब जाता है तब पहले 3 रेस टू 2 9, एंड फिर 2 रेस टू 9. अभी 2 रेस टू 9 512. ठीक है. एंड व्हेन यू ट्राई टू फाइंड आउट anything raised to a negative, means it is 5 raised to minus 2, which is same as 1 upon 5 raised to 2. कुछ है स्कूल डेज का इंडाइसिस थियोरी एंड ऑल, कुछ याद है कि नहीं? 1 upon 5 raised to 2 is same as 5 raised to minus 2. तो 1 upon 25 हो गया ना, and 1 upon 25 is same as 0.04. It is same ना, 0.04 ही आएगा. Right or no? Got it. फिर यहां देखो, -5 लिखने जाते हो, तो इनका कहना है ये सिंटैक्स एरर है. एक तो इसको मींस ये पूरा ब्रैकेट में डालो और फिर साइन करो, ऐसा नहीं चलेगा. ये मैंने शायद कल भी दिखाया था. सी -5 देखो वो ऑलरेडी एरर दे रहा है, इट इज नॉट एक्सेप्टिंग ओनली. हाँ, बट अगर मैंने इसको ऐसा पूरा ब्रैकेट में डाल दिया एंड फिर उसको माइनस साइन दिया तो चलता है. ठीक है, इट वर्क्स. तो ऐसे सब छोटे छोटे चीजें वो याद रखना है, क्योंकि ट्रेस आउटपुट क्वेश्चंस में यही सब चीजें आते हैं. ठीक है. एंड दिस वे इफ यू डू ब्रैकेट -5 then it will work. Let's check whether it works. Huh, it works. Means you have to put a bracket besides that -5. Okay. And now it will work. It gives 25. So -5 raised to 2 it becomes, no? So -5 into -5, which is plus 25. Right? And whenever you put only that assertion on a string, the string will get converted to number. तो ये डबल कोट 5 क्या बन जाएगा? 5. ट्रू पे असर्शन लगा है तो 1, फॉल्स पे असर्शन है तो 0. ठीक है. नल पे भी असर्शन है तो नल इंटरनली 0 है इसलिए 0. एंड मैंने ऑलरेडी बताया अनडिफाइंड पे कोई भी अरिथमेटिक करने गए नैन है. ठीक है. अब अरेज पे असर्शन लगा है तो ये एम्प्टी अरे है गाइस. एम्प्टी अरे है तो इसका स्ट्रिंग क्या बनने वाला है? एम्प्टी स्ट्रिंग. एंड एम्प्टी स्ट्रिंग पे जब प्लस लगाएंगे तो एम्प्टी स्ट्रिंग कन्वर्टेड टू 0. 0 का प्लस 0 इसलिए 0. ये अरे में एक ही वैल्यू है इसलिए उसका स्ट्रिंग कन्वर्जन क्या बनेगा? स्ट्रिंग 5. एंड उस पे प्लस लगा तो ये स्ट्रिंग नंबर में कन्वर्ट होकर 5. बट व्हेन यू आर टेकिंग अ अरे विथ 2 वैल्यूज तो इसका स्ट्रिंग क्या बन गया? स्ट्रिंग 5,6. ठीक है. एंड अगर मैंने इस पे असर्शन लगाया तो पहले ये स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने जाएगा, बट ये नंबर बनेगा ही नहीं इसलिए नैन आएगा. ठीक है. ओके. अभी अगर और एग्जांपल्स रहेंगे तो अगले सेशन में देखेंगे, बिकॉज